Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching Wealth Wizards. So in this video, I will talk a bit about compounding, and later in the video I will also show you my mutual fund portfolio कि मैंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, कौन कौन सी स्कीम्स में आई हैव इन्वेस्टेड एंड what are the returns till now, and I will give you a brief idea, a rough estimate how much returns you can expect to make over the long term. Okay, so this video is very important, so please watch till the end. And before going further, if you have not watched my video on mutual funds, तो you can check that out. I will put the link in the description. So उस वीडियो में मैंने A to Z of mutual fund explain किया था, and I have also provided a framework through which you can choose the right mutual fund for you. So please check out that video if you haven't yet. Okay, so let's get started with the video. So I will start with this PowerPoint presentation where we are going to see compounding. Okay, so compounding क्या होता है, and you have to understand the reality of compounding if you are doing SIPs in mutual fund. Okay, तो नाउ ये हम सब ने पढ़ा होगा स्कूल में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? बट लेट्स रिवाइज इन वेरी लेमन टर्म्स. So what is compound interest? Okay, the interest on a loan or deposit calculated based on both the initial principal and the accumulated interest from previous periods. अब इसका मतलब क्या हुआ? Let's say I am investing 100 rupees and I am expecting कि per year I am going to make 10% returns on that. Okay, so first year में I will make a profit of 10 rupees, right? क्योंकि 10% मैंने assume किया है rate of return है which will remain the same. तो फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज़ इज़ माई प्रिंसिपल अमाउंट, तो उस पर आई विल गेट द रिटर्न. ओके, एंड जब नेक्स्ट ईयर की बारी आएगी, इन सेकेंड ईयर द बेस अमाउंट, द प्रिंसिपल अमाउंट विल इंक्रीज. अब वो 100 रुपीज़ नहीं है, राइट? अब वो बेस अमाउंट हो गया 110 रुपीज़. सो अब मुझे जो रिटर्न मिलेगा 10%, दैट विल बी ऑन टॉप ऑफ 110 रुपीज़. सो माई प्रॉफिट विल बी 11 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 10 रुपीज़, राइट? सो वी विल सी दैट इन डिटेल. Now this is a famous quote, so make sure you remember that compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it, he who doesn't pays it. So this is a famous quote by Albert Einstein, and this pretty much sums the importance of compound interest. Okay, so compound interest is considered as the eighth wonder in the world. And now this is a diagram, this is a chart which shows how the compound interest versus simple interest looks like. Okay, so here we have the number of years and here we have the amount. So if you see, the principal remains the same. Let's say you have invested $1,000, so the principal amount will remain the same. Okay, so let's say आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट वैसे का वैसा रहेगा, राइट? आप उसको अगर अपने बैंक अकाउंट में छोड़ देते हो तो हार्डली यू गेट 3 to 4%. Now this is the next curve which shows interest but no compounding. अगर simple interest है, अगर compounded rate of return नहीं मिल रहा है, तो this will be the curve. तो ये एक linear curve है. Okay, and by the end of let's say 20 years you have $3,000 अगर compounding का effect नहीं हो तो, right? And then you see this line, exponential line. So this is compound interest. तो ये जो आपने initial principal amount invest किया था, तो इस पे अगर आपको same rate of return मिलता है but compounded, राइट? जैसा कि हमारा नॉर्मली होता है whenever you invest in stocks or in mutual funds through SIPs. तो this will be the exponential curve. This is the curve for compound interest. ठीक है, आपको ये एक पॉइंट दिखेगा which they have denoted as pocket change. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि the difference becomes more and more substantial. So the main magic of compound interest lies in timing. Okay, so when you stay patient, when you invest for long term, तो धीरे धीरे करके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे. ओके, इट इज़ नॉट वेरी मच विजिबल इन शॉर्ट टर्म. ओके, अगर आप लेट्स से 4 years या 6 years का होराइजन लेके चल रहे हो तो देयर इज़ अ वेरी स्मॉल गैप, राइट? बट एज यू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टेन्योर, देन यू सी दिस कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स वेरी important. Okay, and your profits will keep on increasing exponentially. तो जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारेंगे तो वैसे वैसे ये आपका जो प्रॉफिट है दैट विल ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग वेरी फास्ट. ओके, सो जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट विल बी फास्ट एज द टाइम प्रोग्रेसेस. ओके, सो मेक श्योर यू टेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, एंड देन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो लेट्स से मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 1000. आई एम मेकिंग दिस एवरी ईयर. ओके,
रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%. सो लेट्स से मैंने एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आई एम डूइंग द इन्वेस्टमेंट जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न मान के चलते हैं कि 10% है ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस. तो फर्स्ट ईयर में माई प्रॉफिट विल बी 100 रुपीज़, राइट. 1000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर 10% रिटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग, तो प्रॉफिट इज़ 100. नाउ टोटल वैल्यू विल बी 1100. नाउ year 2, okay, now profit will be 110. Why? Because this is my new principal amount, so my base amount is increasing, right? So 10% of 1100, this is 110. So I have invested the same amount, rate of return is also same, but the profit will keep on increasing. As you will see, by year 5 the profit is 146 and my total value is 1610. Another important thing to note here is that प्रॉफिट आपका सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा है, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इज इन प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. यहाँ पे आपका प्रॉफिट था 100 रुपीज़, ओके, देन यू हैव 110 रुपीज़, 10 रुपीज़ का डिफरेंस. देन ईयर 3 में योर प्रॉफिट इज़ 121, सो यू सी 11 रुपीज़ का डिफरेंस. देन यू हैव 133, यहाँ पे आप देखो तो 12 रुपीज़ से आपका प्रॉफिट बढ़ा, ओके. सो द प्रॉफिट keeps on increasing, but at the same time the rate of increase in profit is also increasing. So this is the real magic of compounding, and you will note that a point will come where the profit will exceed the initial investment. तो एक आपका initial investment तो same है, okay. Let's say आप 20 साल के लिए invest कर रहे हो, तो you are investing the same amount 1000 rupees, okay, but there will be a point when the profit will exceed this initial investment, okay, and there you will see, if you plot this on a curve, there you will see an exponential growth, okay. Now 5 benefits of SIPing into mutual funds. तो इसको हम एक एक्सेल शीट में इसको प्लॉट करके we will plot the graph also. So we will take till 20 years और उसको फिर एक प्लॉट करके देखेंगे कि how the graph looks like, okay. Now 5 benefits of SIPing into mutual funds. तो जब आप SIP करते हो mutual funds में, तो one of the benefits is the power of compounding also, okay. Now let me close this and let's go to the Excel sheet, okay. So let's say आपने 2024 से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया एंड फर्स्ट ईयर में आपने इन्वेस्ट किया 1000, सो दिस इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल रिमेन द सेम, ओके. देन वी आर अज्यूमिंग कि 10% रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है. 2024 से लेके 2043 तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड द अमाउंट इज सेम. हर साल आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट्स से, एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो वी हैव अज्यूम्ड कि 10% फॉर सिंप्लिसिटी, ओके. So now what will be the value of this 1000 after 1 year, okay. So let me put the formula here. So it will be B2 into 1 plus this column is, this cell is C22, okay. So if I expand this, then here it will take the next cell, so I have to modify this a little bit. Okay, so it is 1210 because 10% on this 1100, this is 110, so your amount will become 1210, okay. Now let me expand this, so hope this formula will work correctly. Yeah, so this is the same figure that we have seen in our PowerPoint also. So if we expand this till here, then you see in 2043 this 1000 that you have invested becomes 6160, okay. Now my main agenda is to show you the graph, okay. So we have seen that it is an exponential graph. When you have simple interest, when there is no compounding, then the growth is linear. But जब compounding comes into picture, then if you will plot the curve, okay, and you will see कि कैसे आपका पैसा grow किया है, तो you will get an exponential curve. Now let me do this. So for this I will select this column and I guess we can plot the chart here. So I will go to this line chart, okay, and yeah, let me expand this and you see, so this is the curve, right. Here you have the number of years and
this on the y-axis you have the amount. So you started with this 1000 and after 20 years your sum has grown to 6116. सो धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे आपकी वैल्यू और बढ़ेगी. ओके, एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू विल बी मोर बिकॉज भले रेट ऑफ रिटर्न सेम है. ओके, एवरी ईयर यू आर गेटिंग 10% बट बेस अमाउंट इज इंक्रीजिंग. लेट्स से आज आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज़. ओके, और 10% रिटर्न है. तो अगर 10% वो बढ़ता है तो दैट वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक विल बिकम 1100. ओके, आपका गेन कितना हुआ 100 रुपीज़. ओके, बट लेट्स से वही आपने 1 लाख रुपए, आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए आपने उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया. 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया उस स्टॉक में. ओके, सो लेट्स से इंस्टेड ऑफ 100 शेयर्स मे बी यू बॉट 10,000 शेयर्स. ओके, एंड रेट ऑफ रिटर्न तो सेम ही रहेगा 10%. तो अब आपका प्रॉफिट कितना हुआ? पहले जब आपने 1000 इन्वेस्ट किया था तो 10% रिटर्न के बाद योर प्रॉफिट वॉज 100 रुपीज़. बट जब आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, सेम स्टॉक में सेम रेट ऑफ रिटर्न है बट योर प्रॉफिट विल बी 10,000. इसका मतलब जैसे जैसे आपका बेस अमाउंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी सब्सटेंशियली इंक्रीज होगा. सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. ओके, नाउ लेट मी go to my ICICI bank account and let me show you my mutual fund portfolio. Okay, so let me log in very quickly. So just a small disclaimer here, please don't consider this as any kind of recommendation. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया है आपको भी अभी जाके उसमें इन्वेस्ट करना है. ओके, एंड I have been invested since last 6 years, so अभी की conditions might be different and ऐसा ज़रूरी नहीं है कि whatever returns I have got, so you will also get the same returns if you start investing from today. Okay, so this is not any kind of recommendation, so please do your own research before you are investing in any mutual fund. Okay, and in my mutual fund video I have explained in detail how you can do the research and how you can सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड फॉर यू. बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा म्यूचुअल फंड है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है आपके लिए भी वो बेनिफिशियल हो. ओके, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट, कितना रिस्क आप ले सकते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपका टाइम होराइजन कितना है, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, आपको उस पैसे की तुरंत ज़रूरत है या नहीं. ओके, सो ऑल दैट फैक्टर्स कम इन टू पिक्चर, राइट? सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. Okay, so I will go to the portfolio section. Yeah, so here you can see that ये total 4 schemes हैं where I have invested. Quant ELSS में मैंने investment अभी बंद कर दी है, so this is on hold. And currently I am invested in SBI Flexi Cap, Nippon India Small Cap and this Nifty 50 Index Fund. Okay, so Quant में मैंने अभी SIP को बंद कर दिया है, but there is a lock-in period of 3 years. So 3 years complete होने के बाद I can redeem my units. Okay, but आई एम स्टिल इन्वेस्टेड इन दिस. तो जितना भी मेरा पैसा है वो इसमें अभी भी इट विल बी ग्रोइंग इफ दिस म्यूचुअल फंड स्कीम ग्रोज. ओके, सो नाउ क्विकली जैसा कि आप देख सकते हो दिस इज़ द वैल्यू एट कॉस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक दिस SBI फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ. ओके, सो एवरेज कॉस्ट प्राइस. ओके, मतलब जितनी भी यूनिट्स मेरे पास हैं उसका जो NAV है, एवरेज NAV, दैट इज 67. Now NAV is net asset value. So I have explained this in detail in my mutual fund video. You can check that out. And अभी जो इसकी वैल्यू है, okay, that is 99. So in a nutshell, जैसे स्टॉक का प्राइस होता है, okay, let's say टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स का प्राइस let's say 880 है. तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का कितना प्राइस है that is determined by NAV. और जैसे जैसे NAV बढ़ेगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होगा. So यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट्स हेल्ड, राइट? सो अगर आप एवरेज कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो विद नंबर ऑफ यूनिट्स तो आपको वैल्यू एट कॉस्ट आ जाएगा. एंड लेटेस्ट NAV को इफ़ यू मल्टीप्लाई बाई यूनिट्स हेल्ड तो यू गेट द वैल्यू एट NAV. सो सिंपली दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव इन्वेस्टेड एंड दिस इज द करेंट वैल्यू. ओके, सो दिस माइनस दिस इज द प्रॉफिट. तो यहाँ पे प्रॉफिट है 1,42,000 एंड इन परसेंटेज इट इज़ 48%. नाउ प्लीज़ नोट दैट दिस इज टोटल रिटर्न एंड नॉट एनुअलाइज्ड रिटर्न, मतलब ये अभी तक का टोटल रिटर्न है. ओके, सिमिलरली निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, सो इसमें आई हैव बीन इन्वेस्टिंग सिंस लास्ट 6 years.
So यहाँ पे you can see that 83% profit till now. Okay. Then Quant ELSS tax saver fund. तो यहाँ पे I have stopped SIP now, but still I will be able to redeem after 3 years. तो current जो profit है that is 93,000. And similarly I have recently also started investing in this Nifty 50 index fund. तो बेसिकली ये क्या करता है कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट करता है. सो दिस इज़ अ वेरी सेफ वे ऑफ इन्वेस्टिंग जहाँ पे आपको आराम से 10 से 12% मिल जाएगा ऑन एवरेज. ओके. सो यहाँ पे जो प्रॉफिट है दैट इज़ 38,000 टिल नाउ. ओके. एंड द परसेंटेज इज 37%. नाउ यहाँ पे टोटल यू कैन सी टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड एंड करेंट वैल्यू. So 9,60,000 somewhat is the amount invested and 15 lakh is the current value. This is the total profit and loss. Okay, realized and unrealized. तो realized ये रेट से है 46 रुपीज़ का लॉस. तो दिस इज़ बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में ही विड्रॉ कर लिया था. सो जस्ट फॉर ट्रायल पर्पस कि वी आर एबल टू रिडीम. तो जितना मैंने 2,000 डाला था वो नेक्स्ट मंथ विड्रॉ कर लिया था. तो एट दैट टाइम देयर वॉज अ लॉस ऑफ 46. तो ये रियलाइज्ड है. एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 6,16,000. तो मैंने कोई भी यूनिट अभी तक सेल नहीं की है, दैट्स वाई इट इज़ इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. ओके. एंड इफ़ आई शो यू माई CAGR, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 कॉलम्स हैं. हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, मतलब वो यूनिट्स विच आर हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, वहाँ पे जो रिटर्न है दैट इज़ 23%. ओके. एंड फॉर द यूनिट्स हेल्ड फॉर ग्रेटर देन 1 ईयर, वहाँ पे जो एनुअलाइज रिटर्न है दैट इज़ 27%. तो दिस इज़ द एक्चुअल CAGR जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. मतलब पर एनम आप कितना रेट जनरेट कर पा रहे हो. ओके. सो ये डिफरेंस इसलिए है वाई इट इज़ सेग्रीगेटेड, बिकॉज अगर आपके पास यूनिट्स लेस देन 1 ईयर है तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है. ओके. एंड अगर ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए आप होल्ड करते हो तो उस पर LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है. सो LTCG इज़ 10% एंड STCG इज़ 15%. ओके. तो दिस इज़ माई पोर्टफोलियो, राइट. एंड इस तरह से आप अपने लिए भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज़ फ्लेक्सी कैप फंड, देन आई हैव स्मॉल कैप फंड, राइट. सो आई एम इन्वेस्टिंग एग्रेसिवली इन दिस स्मॉल कैप. तो सबसे ज़्यादा जो मेरा SIP का अमाउंट है वो इसी में जाता है. देन दिस वॉज फॉर टैक्स सेविंग. एक्चुअली नाउ आई हैव स्टॉप्ड दिस बिकॉज नाउ आई एम इन द न्यू, आई एम ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रिजीम. तो दिस इज़ नॉट मच यूजफुल. दैट्स वाई ये मैंने SIP बंद कर दी इसमें. एंड अगेन दिस आई हैव इन्वेस्टेड फॉर अ बिट ऑफ सेफ्टी पर्पस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बिकॉज निफ्टी ओवर अ लॉन्ग टर्म आपको 10 to 12% रिटर्न आराम से देगा. ओके. सो व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड मैंने अपनी SIP स्टार्ट की थी आई थिंक 2018 में. सो इस पर क्लिक करके यू कैन सी ऑल द ट्रांजेक्शन्स टिल नाउ. ओके. सो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम इन्वेस्टिंग अराउंड 22,000 per month in this mutual fund Nippon India small cap. Okay. Then in SBI Flexi Cap I am investing around 8,000. Okay. And in this ELSS I have stopped. So 1st July को मेरी last transaction हुई थी. So now I am not investing in this. And Nifty 50 का अगर हम देखें तो latest जो transaction है that is 5,000. So 5,000 I am investing in this. So overall I am investing 35,000 per month in these 3 mutual fund schemes: SBI Flexi Cap, then Nippon India Small Cap, and this Nifty 50 Index Fund. Okay. So small cap में I started investing with 2,000. Okay. You can see 2nd March 2018 को मैंने start किया था and I started with this amount 2,000 and gradually I increased. So काफ़ी टाइम तक मैंने हर मंथ 2,000 इन्वेस्ट किया as you can see. Okay. And then I slowly increased that. फिर यहाँ से आप देख सकते हो 2021 September से I increased my SIP amount to 4,000. Okay. And again at one point of time I decided to go all in and I changed my SIP amount to 22,000. So आप अपनी SIP amount change भी कर सकते हो. Okay. there is an option of step up also. जैसे let's say आपने 2,000 से स्टार्ट किया एंड यू वांट दैट हर 6 महीने में या हर 1 साल में आपका जो SIP अमाउंट है दैट गेट्स इंक्रीज्ड बाई 5% और 10%. तो वो भी आप कर सकते हो. ओके. सो SIP ऑफर्स यू अ वेरी फ्लेक्सिबल वे. कभी भी आप अपनी SIP इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो या इवन यू कैन पॉज दैट. ओके.
Similarly, FlexiCap, here also I started investing since 2018. So fifth, I think this is, so October 2018 से I started with this 2500. So इतने इन्वेस्टमेंट से मैंने स्टार्ट किया था, एंड ये एक्चुअली एक स्टेप अप SIP था. So I increased my SIP amount by 500 after 1 year. So this was actually a step up SIP, and I think it is still step up only. So after every 1 year there is a fixed amount by which my SIP amount will increase. Okay, so currently I'm investing 8,000 per month in this mutual fund scheme. Okay, and similarly in this Nifty 50 index fund, so ये मैंने अभी जुलाई 2023 से स्टार्ट किया है, and it has been like roughly around 10 months, and currently I'm investing 5,000 per month in this SIP. So total 35,000 per month मेरी इन्वेस्टमेंट है. ओके, and most of that amount goes into small cap fund. So again, as I said, please don't take this as a recommendation. Okay, and it is very important to understand the current scenario. जैसे आपको अगर अभी इन्वेस्ट करना है तो अभी it might be that there is some other mutual fund which is doing better than all this. Okay, so it is not necessary that if you start investing in these mutual fund schemes you will get the same return. आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है. Okay, no one knows, but वो टाइम डिफरेंट था. I started investing in 2018, and at this point of time if you want, then I suggest that you do proper research. Okay, and in my previous video on mutual fund I have already explained कि ET Money की वेबसाइट पे जाके आप कैसे अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कंपेयर कर सकते हो, एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू वांट टू सेलेक्ट द म्यूचुअल फंड स्कीम. ओके, एंड बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करते हैं. जैसे आपका रिस्क एपेटाइट कितना है. अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो यू शुड गो फॉर स्मॉल कैप, जहाँ पे आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है, बट एट द सेम टाइम रिस्क विल ऑल्सो बी देयर. If your risk appetite is low, if you have let's say more financial responsibilities towards your family, then you should go for somewhere mid cap to large cap, जहाँ पे आपको rate of return थोड़ा कम मिलेगा but the risk also will be less. Okay, so please consider these factors in mind when you are deciding for investing in any mutual fund. Okay, so I just wanted to show you my portfolio and how you can diversify and what is the actual realistic return which you can expect. Now this 27% is a bit more on the optimistic side. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 years down the line this return will be same, ये कम भी हो सकता है. Okay, so this is a bit I would say a very optimistic scenario, but nevertheless you can generate such type of returns. Okay, if you select the right mutual fund scheme. Okay, so now I want to show you how this compounding actually works. Okay, अगर हम 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, okay, fixed amount with fixed rate of return, तो how this compounding works. Okay, so you have various SIP calculators which you can use. One is on this etmoney.com. so here यहाँ पे आपको जाना है, मोर में SIP कैलकुलेटर पे क्लिक करना है. ओके, एंड यहाँ पे आप डाल सकते हो मंथली अमाउंट जितना आपको इन्वेस्ट करना है. तो आई एम नॉट सेइंग यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद दिस 35,000. मे बी आप अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हो, सो यू आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट दैट मच. यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 500 और 1,000 रुपीज़. ओके, सो वी विल टेक वेरी कंजर्वेटिव. लेट्स से 5,000 रुपीज़ यू आर इन्वेस्टिंग मंथली. ओके, एंड ग्रोथ रेट आई हैव शोन यू 27% रिटर्न है CAGR. सो लेट्स टेक दैट रिटर्न फर्स्ट. ओके, it will not allow me to enter. I think 25 is the maximum, 25%, and let's say you are investing for 5 years. Okay, तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया 3 lakhs एंड आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स है, मतलब जो प्रॉफिट है, दैट इज ऑल्सो 3 lakhs. मतलब 100% रिटर्न्स यू आर एबल टू generate. You are able to appreciate your capital, grow your capital by 100% in 5 years. Okay, just by investing 5,000 monthly and growth rate is 25%. अब बहुत से लोग बोलेंगे कि दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक. ओके, 25% बहुत रेयरली आपको मिलेगा. सो आई विल टेक दिस एज 18%. नाउ आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट इफ यू आर नॉट एबल टू जनरेट दिस 18% रिटर्न at least, then
you are doing something wrong. Okay, so if you do some research, okay, if you do proper research and you select the right mutual funds, you diversify your portfolio, then at least you should be able to grow your capital by 18%. okay, तो इससे कम कुछ भी अगर है तो that means you are doing something wrong. okay, so 18% I believe is very conservative. and let's say again 5 years. so यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्वेस्टेड अमाउंट इज 3 lakhs एंड एस्टिमेटेड रिटर्न्स 1.8 lakhs. मतलब आपने टोटल 3 lakhs इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कितना है 1.8 lakhs. ओके, सो आफ्टर 5 years द टोटल अमाउंट विल बी 4.8 lakhs. अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं. सो लेट्स से यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 20 years. तो यहाँ पे आपको पूरा कंपाउंडिंग का गेम समझ में आएगा. ओके, नाउ इन्वेस्टेड अमाउंट इज 12 lakhs. ओके, आपने 5,000 इन्वेस्ट किया मंथली, मतलब साल में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 60,000, राइट? आई होप माई मैथ्स इज करेक्ट. मल्टीप्लाइड बाई 20, सो 12 lakhs आपने इन्वेस्ट किया टोटल. एंड सी द रिटर्न्स 1.05 crore. ओके, बट दिस इज नॉट द इंटरेस्टिंग थिंग. द मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इफ यू सी दिस ग्राफ, तो यहाँ पे जो येलो पार्ट है दैट इज़ द गेन. स्टार्टिंग में आप देखो कि इफ़ यू सी दिस बार टोटल इन्वेस्टेड, ओके, आपका इतना टोटल इन्वेस्टेड सेम रहेगा बिकॉज एवरी ईयर यू आर इन्वेस्टिंग 60,000. तो जो ये अमाउंट है ये सेम 60,000 एवरी ईयर इट विल इंक्रीज. जैसे अभी 3 lakhs था, देन इट बिकम्स 3,60,000, देन इट बिकम्स 4,20,000. बट दिस गेन इंक्रीजेज. ओके, एंड ये गेन ऐसा नहीं है, गेन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द सेम प्रपोर्शन. दिस गेन इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. जो आपका प्रॉफिट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है. यहाँ पे आप देखो इट इज़ 10 lakh, देन 14 lakh, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 lakh से आपका गेन बढ़ा. ओके, देन इट इज़ 18, अगेन रफली 4 lakhs, देन इट बिकम्स 23 lakhs. अभी गेन कितना हो गया 5 lakh से ग्रो कर रहा है. देन इट इज़ 29. यहाँ पे डिफरेंस कितना है 6 lakhs का है. एंड बाद में 19th ईयर तक आते आते यहाँ पे आपने 70 lakhs आपका गेन था बाई दिस 18th ईयर. एंड यू सी इन द 19th ईयर इट ग्रोज अप टू 86 lakh. यहाँ पे डिफरेंस आता है 16 lakhs का. ओके, एंड दिस इज़ इवन मोर देन योर इन्वेस्टेड अमाउंट. तो जैसा मैंने आपको कुछ टाइम पहले जब वो ग्राफ हमने प्लॉट किया था, तो आई टोल्ड यू दैट देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन दिस गेन विल एक्सीड द टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट. ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो दिस गेन हैज़ एक्सीडेड दिस टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट समवेयर हियर ओनली. ओके, सो एट द एंड 20th ईयर में आपका जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज़ 1.05 crore. सो जस्ट इफ यू सी दिस येलो बार्स you will understand the power of compounding. Okay, so this happens when you stay invested in a mutual fund scheme for 15, 20, 25 years. Okay, so then only this compounding will come into picture. Okay, now यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं. Let's say you are investing 5,000. Okay, and ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ 5,000, अगर आप अभी 20 years के हो या 25 years के हो एंड यू हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग विद दिस 5,000, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, आपका कभी प्रमोशन नहीं होगा. ऑब्वियसली यू विल ग्रो इन योर कैरियर, योर सैलरी विल इंक्रीज, आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी, तो यू कैन इंक्रीज दिस इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑल्सो. ओके, नाउ मान लेते हैं आपका हर साल वेरी कंजर्वेटिव 5% इंक्रीमेंट होता है, 5% सैलरी हाइक इन योर कंपनी वेर एवर यू आर वर्किंग. तो हर साल आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हो 5% से. ओके, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगेन हम 18% लेके चलते हैं, विच आई टोल्ड यू इज प्रिटी अचीवेबल. ओके, एंड यू कैन ईजिली अचीव दिस 18% रिटर्न. ओके, एंड दिस 18% इज एवरेज. ऐसा हो सकता है किसी साल आपको 14% रिटर्न आए या 15%, बट ऐसा भी होगा कि some years will be very good, then it will cover for that. Okay, maybe आपको 20-21% भी रिटर्न आ जाए. So on an average 18% return we are expecting. Okay, and some of the small cap mutual funds have given more than 30% returns. CAGR I am talking about in last 5 years. आप ET Money की साइट पे जाके चेक कर सकते हो. So 18% is pretty much achievable and time period again 20 years. तो यहाँ पे हमने देखा कि 5,000 आई एम इन्वेस्टिंग मंथली 20 years तक कंटिन्यूसली, देन
what is my estimated returns, that is 1.05 crore. ओके एंड जस्ट मैंने यहाँ पे स्टेप अप किया 5%, मतलब एक साल के बाद आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट था 5000 का, वो आपका स्टेप अप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके 5% से. सो 5% कितना हो गया, आई गेस 250 रुपीज़. तो अब आपकी जो एक साल के बाद जो आपकी SIP होगी वो हो जाएगी 5250 की. फिर एक साल के बाद उसका 5% इंक्रीमेंट होगा. सो दिस वे यू कैन स्टेप अप योर SIP. ओके, तो यहाँ पे आप देखो व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू. सो एस्टिमेटेड रिटर्न्स इज नाउ 1 crore 30 lakh. दिस इज़ द इन्वेस्टेड अमाउंट. यहाँ आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था 12 lakh. ओके, अब यहाँ पे आपने स्टेप अप किया, हर साल आप अपनी SIP को स्टेप अप कर रहे हो बाई 5%. सो अराउंड 20 lakhs यू हैव इन्वेस्टेड and 20 lakhs पे you have gained a profit of 1 crore 30 lakh. So this is the total value, around 1.5 CR. Okay, so this is how you can reap the benefits of compounding if you stay invested for a very long term. Now there is another thing that is to be considered. So YouTube पे ऐसे बहुत सारे influencers हैं, they will paint a very rosy picture in your head कि जस्ट आप SIP करके करोड़पति बन सकते हो. ओके, दे विल शो दिस डेटा और उसके बाद दे विल नॉट टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड दैट इज़ इन्फ्लेशन. ओके, इन्फ्लेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड अगर आप बोल रहे हो कि 20 साल के बाद योर कॉर्पस विल बी 1.5 CR. ओके, सो 1.5 CR की जो वैल्यू होगी दैट विल नॉट बी सेम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, दैट विल बी वे लेस. सो लेट्स से अभी आप कंसिडर कर रहे हो 1 CR. ओके, आफ्टर 20 years इवन इफ यू अचीव दिस वैल्यू, राइट, 1 CR आपने कॉर्पस बना लिया, बट कंसिडरिंग इन्फ्लेशन टू बी अराउंड आई डोंट नो 7% में भी एक मिड वे लेके चलते हैं, तो जो 1 CR की वैल्यू होगी इट विल बी समवेयर बिटवीन 30 lakhs to 35 lakhs मैक्सिमम. ओके, सो you have to consider inflation also in this account, right? अब यहाँ पे कैलकुलेटर है, इन्फ्लेशन कैलकुलेटर. सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि लेट्स से आई एंटर दिस वैल्यू 1 crore. ओके, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम मान लेते हैं समवेयर अराउंड 7%. ठीक है, 7%, एंड टाइम पीरियड अगेन 20 years. तो 20 years के बाद इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी. सो 20 years के बाद जो फ्यूचर कॉस्ट है इसकी दैट विल बी अराउंड 3 crore 86 lakh. ओके, इसका मतलब अगर आपको एक्चुअल में 1 crore चाहिए, सो यू हैव टू जनरेट समवेयर अराउंड 3 crore 86 lakh. तो इसकी जो वैल्यू है वो आज के 1 crore के बराबर होगी, राइट. सो ऑब्वियसली यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो अगर आप 5000 इन्वेस्ट कर रहे हो 20 years, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न तो हम बढ़ा नहीं सकते, देयर इज़ अ लिमिट. ओके, 18% इज़ ऑप्टिमम. तो यू विल बी ओनली एबल टू जनरेट दिस 1 CR अराउंड. बट अगर आपको इतना जनरेट करना है 3 crore 86 lakh. ओके, सो दिस विल बी द एक्चुअल कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट फॉर दिस 1 CR. तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, सो मे बी यू कैन इंक्रीज दिस इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन. ओके, यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर a longer period than this 20 years, or you can also you can also increase the investment amount. जैसे अभी आप 5000 इन्वेस्ट कर रहे हो, सो लेट्स से कुछ टाइम के बाद यू कैन इंक्रीज द SIP. ओके, आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आई स्टार्टेड विद 2000 रुपीज़ ओनली व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड विद SIP, एंड करेंटली मुझे 6 साल हो गए इन्वेस्ट करते करते इन म्यूचुअल फंड. सो नाउ आई एम इन्वेस्टिंग अराउंड 35,000. सो इस तरह आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना इंक्रीज़ कर सकते हो टू इंक्रीज़ द टोटल कॉर्पस. एंड लेट्स से बीच बीच में आपको कोई बोनस मिला या आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम हुई, सो वो आप लमसम भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. सो SIP ऑफर्स अ वेरी फ्लेक्सिबल वे, ओके, टू इन्वेस्ट. तो SIP के साथ साथ आप लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, सो दिस वॉज broad analysis of my portfolio, right? And I also shown you the effect of compounding. So you can use these calculators, SIP calculators. You can play with these numbers
एंड इस हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, आप अपनी गोल प्लानिंग कर सकते हो कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है। ओके, एंड यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, इफ़ यू गो टू दिस ईटी मनी साइट SIP कैलकुलेटर, so they will suggest you what mutual funds you can invest to fulfill your investment strategy. Okay, जैसे ये सजेस्ट कर रहे हैं पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो इसका पर एनम रिटर्न इज 26%। कैनरा रोबेको ब्लू चिप, ये लार्ज कैप है, 20%। सो इवन इन लार्ज कैप फंड यू आर गेटिंग दिस 20% पर एनम। तो 18% जो मैंने आपको बोला दैट इज़ प्रिटी मच अचीवेबल, और कम से कम आपको उतना यू शुड बी एबल टू जनरेट 18% रिटर्न CAGR। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही, and I will see you guys in the next video. Till then, like, share, comment, subscribe and press the bell icon so that you don't miss any notifications. Okay, so bye bye and happy investing.